हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. Yeah. So, in this lecture, we will discuss secure cell protocol. Clear? That is another protocol in the category of the security for the transmission. Clear? So, before going to discuss, just want to tell you some introduction regarding this. So, so this is a protocol that is for secure remote login, and exactly हम लोग इसको जो use करते हैं SSH को, SSH का full form है secure cell. Clear? So it is a protocol that is used for the remote login, secure remote login, and other secure network services over an insecure network. Clear? So it is just developed by the scientist, that is, ये देख सकते हैं साइंटिस्ट का नाम मेंशन है इसमें, टॉटू योलोन. Clear? This is belong to the University of Finland. Later on, this is commercialized by the SSH Communication Security Corporation, that is Finland. Clear? So we are having two distributions that are available with the SSH, that is commercial version. Then we have the freeware version. Clear? Now, SSH2 is specified in a set of internet drafts. So you can see मेनली 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं एसएसएच प्रोटोकॉल के अंदर. ठीक है, इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट्स. जैसे पहला क्या है, एसएसएच ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल. ये क्या करता है, इट प्रोवाइड सर्वर ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी, फॉरवर्ड सीक्रेसी. क्लियर? सो एसएसएच ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल बेसिकली हमको क्या करता है, ये प्रोवाइड कराता है एंड पे जो ऑथेंटिकेशन है, देन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी. ये हम तीनों पॉइंट आपको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होता है. क्लियर? देन सेकंड आपका मेजर कंपोनेंट क्या है कि इट यूजर एसएसएच यूजर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, दैट इज इट ऑथेंटिकेट्स अ क्लाइंट टू द सर्वर. क्लियर? ये क्या करता है, ऑथेंटिकेट करता है क्लाइंट को सर्वर से. एंड थर्ड वन इज द एसएसएच कनेक्शन प्रोटोकॉल which multiplexes the encrypted tunnel. इसमें टनल फॉर्मेशन होती है जिससे हमारा डेटा कम्युनिकेट करता है. क्लियर? So it multiplexes the encrypted tunnel into several logic channels. That means it enables secure cell session or TCP port forwarding, tunneling, etc. Clear? So this is another that is very important term, that is SSH connection protocol. ठीक है? Now we come to the next slide. So आप ये देख सकते हैं कि SSH protocol stack है. Clear? So if I just zooming it, then you can see. Okay, I think it is visible to all of you now. ये सभी को visible हो रहा है? Yes, Is sir. it visible to all of you? Okay. So if you see, we have SSH in this communication block. You can see this is what, this is the you can see this is a protocol stack. ये बहुत important diagram है. If we anyone in the examination, if SSH protocol is asked, so you will draw this block diagram or flow diagram that represent the protocol stack. Clear? So you can see in this protocol stack we have several layers. Clear? In the upper part you can see this is the upper part of this. It is having the SSH user authentication protocol. Clear? जो हमारी तीनों कैटेगरी थी वो इसमें भी इंक्लूड होंगी. आप देख सकते हैं जो हमने अभी तीनों कैटेगरी आपसे डिस्कस करी थी पीछे. क्लियर? ऑथेंटिकेशन,
तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला हमारा आ गया SSH यूजर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल which authenticates the client side user to the server end. Clear? Then we have SSH connection protocol which multiplexes the encrypted tunnel into several logic channels. Clear? तो ये हमारा हो गया कनेक्शन प्रोटोकॉल that multiplexes the encrypted tunnel into several logic channels. देन सेकेंड लेयर आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट लेयर में हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड थे। सेकेंड लेयर अगर आप देखेंगे तो एसएसएस ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का लेयर है। क्लियर? इसमें क्या है, ये प्रोवाइड करता है सर्वर ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी which may optionally also provide compression। ये आपको ऑप्शनली कंप्रेशन भी प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल सेशन जो भी है, क्योंकि अगर हमारा डेटा लॉन्ग लेंथ का है तो उसको ट्रांसमिट करने में हमारा स्पूफिंग के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो वी जस्ट कंप्रेस दैट डेटा बिफोर ट्रांसमिशन। तो ये हमारा जो है कंप्रेशन को भी प्रोवाइड करता है। देन वी हैव थर्ड लेयर इज द टीसीपी एंड फोर्थ वन इज द आईपी। यू ऑल आर अवेयर विद द टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल। टीसीपी आपको पता है, इट इज a transmission control protocol which provides a reliable connection oriented service that is end to end delivery। और आईपी की अगर हम बात करें तो आईपी आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जो कि डेटाग्राम को प्रोसेस करता है अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क। ठीक है, जो डेटाग्राम आप सभी को पता है हम हमारा यूडीपी प्रोटोकॉल में फॉलो होता है फॉर द कम्युनिकेशन। क्लियर? तो जो भी डेटा है हमारा वो एक डेटाग्राम के फॉर्म में कम्युनिकेट करता है वन एंड टू अनदर एंड। क्लियर? नाउ if we talk about now SSH transport layer protocol, clear? So if you can see, if we talk about this protocol, so SSH TLP means हो गया आपका transport layer protocol which typically runs on TCP IP। सभी को पता है ये हमारा TCP IP पे वर्क करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। When used over TCP, जब हम इसको TCP पे यूज करते हैं, the server normally listens for connections on port 22। तो अगर अभी हमने आपको जब बढ़ाया था कि जब हम इंडिविजुअली SMTP प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि पोर्ट 20 और पोर्ट 21 यूज करते हैं। ठीक है, पोर्ट 20 हमारा यूज होता है, सॉरी FTP प्रोटोकॉल हमने आपको पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि FTP प्रोटोकॉल में दो कनेक्शन एस्टेब्लिश होते हैं, पोर्ट 20 एंड पोर्ट 21। पोर्ट 21 हमारा होता है कंट्रोल कनेक्शन के लिए, पोर्ट 20 यूज होता है डेटा कनेक्शन के लिए। ठीक है, तो और SSH TLP में जो हम लोग TCP IP पे हमारा वर्क करता है, इसमें हम लोग नॉर्मली जो कनेक्शन हमारा लिसन करने के लिए यूज होता है वो पोर्ट 22 यूज होता है। ठीक है, ये पोर्ट 22 पे जो हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होता है उसमें हमारे क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं वो देख सकते हैं। पहला है एनक्रिप्शन ऑफ यूजर डेटा, तो जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसको इनक्रिप्ट करेंगे। सेकेंड है आपका सर्वर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, सर्वर ऑथेंटिकेशन सभी को पता है कि सर्वर ऑथेंटिकेशन में हम लोग क्या है, सर्वर को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। क्लियर? जहां से भी हमारा क्लाइंट का कम्युनिकेशन हो रहा है दैट ऑथेंटिकेशन में डन, उसको ये हम लोग सर्वर ऑथेंटिकेशन कहते हैं। क्लियर? All of you are also requested kindly mark your attendance. Clear? All the students are requested to mark your attendance. Okay. तो फर्स्ट हो गया आपका इनक्रिप्शन ऑफ यूजर डेटा। इनक्रिप्शन में हम लोग जब भी डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो सबसे पहले उसको इनक्रिप्ट करते हैं, ये सभी को पता है। देन वी हैव सर्वर ऑथेंटिकेशन। सर्वर ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन एसिमेट्रिक होस्ट कीज। एसिमेट्रिक होस्ट कीज मतलब क्या है, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक की हमने आपको पढ़ाया था। सिमेट्रिक की हमने बताया था आपको, दैट इज द सेम कीज कम्युनिकेटेड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, दैट इज आल्सो नोन एज प्राइवेट की कम्युनिकेशन। एसिमेट्रिक की में हमारा क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कीज आर टेकन बाय सेंडर एंड रिसीवर
one will carry private key and another will carry public key. Clear? So जो हमारा यहाँ सर्वर ऑथेंटिकेशन होता है ये सिमेट्रिक की बेस्ड होता है. क्लियर? होस्ट की उसके बाद थर्ड पॉइंट है इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन. ठीक है, इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन कहाँ हो रहा है? दैट इज एट द ओरिजिन एंड डेटा. जहां से डेटा स्टार्ट हो रहा है और डेटा के अंदर इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना. दैट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ SSH TLP protocol. Then we have compression of data prior to encryption. Clear? Means data should be compressed before transmission. ये हमने बताया था, ये ऑप्शनल होता है, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है. तो इट इज ऑप्शनल टाइप. क्लियर? लेकिन डेटा कंप्रेशन मेनली सिस्टम को स्मूथ बनाता है. ठीक है ना? डेटा कंप्रेशन करने से सिस्टम हमारा स्मूथली रन करता है और एक तरह से कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन हमारा प्रॉपर होता है. उसमें मतलब हमारा स्पूफिंग के चांसेस भी नहीं रहते हैं और डेटा लॉस होने के चांसेस भी कम रहते हैं. क्लियर? एज कंपेयर टू लॉन्ग लेंथ डेटा. कंप्रेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. सो इफ यू टॉक अबाउट द की एक्सचेंज, so की एक्सचेंज मेथड की बात करें तो पब्लिक की एल्गोरिथम, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, मैसेज ऑथेंटिकेशन एल्गोरिथम एंड हैश एल्गोरिथम. These all are negotiated. Clear? Now, देख सकते हैं आप कैसे हमारा पैकेट एक्सचेंज होता है SSH ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल में. कैसे पैकेट एक्सचेंज होता है क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में. यू कैन सी, जस्ट ट्राई टू reduce this form. Clear? So I think it is visible to all of you. Is it visible? So you can see we have a client, we have a server. So before exchanging of the packet between client and server, so they must establish a TCP connection. So you can see there is a establishment of the TCP connection. Then next one is what? After TCP connection, that is make established, then identification string exchange may there. So in identification string exchange, you can see client first send the SSS proto version, that is the software version, to the server, and server acknowledge with that particular message that it is received and now streaming may done. Clear? So you can say exchanging may happen. Clear? So SSH proto version, software version, that is acknowledged by the server to the client. Then we have algorithm negotiation. So in this algorithm negotiation portion, we have SSH message key in it, and then SSH message key. So यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ से क्लाइंट ने SSH मैसेज द की सेंड किया सर्वर को एंड सर्वर ने उसको की सेम मैसेज रिस्पॉन्ड एक्नॉलेज किया. क्लियर? नाउ यू कैन से द की इज एक्सचेंज. की हमारी एक्सचेंज हुई. क्लियर? तो देन एंड ऑफ की एक्सचेंज. एंड ऑफ की एक्सचेंज में हमारे ये दोनों मैसेज ट्रेवल करेंगे. दैट इज SSH मैसेज न्यू कीज that is sent from the client to server, and then it is exchanged by it is also sent by the server to the client. So the service request means you can say it is just request for the service, another service. Clear? So this is SSH TLP binary packet protocol. So you can see we have a payload that carrying the data exactly. It is just passed to the compressed. So it is now compressed, and the compressed data is available over here. So this compressed data exactly is what? This is compressed payload. Now it is appended with the padding bits. Clear? Now you can see we have three more terms, that is sequence, PKTL, PDL. Clear? So अभी हम आपको बताएंगे इसका क्या मीनिंग है. Then this complete message like PKTL, PDL, compress payload, padding. Clear? इसमें completely encrypt, यहाँ पे encrypt हो जाएगा
while the next one, that is from sequence to the padding, that is applied to the MAC. Clear? So encrypt and MAC, that is message authentication code, is applied to the uh, we get the cipher text from this encrypt and MAC. जब दोनों आपस में combine करेंगे तो we get the cipher text, and this is what, this is the SSH packet. इसी को हम SSH packet कहेंगे in combined form, that carrying the cipher text and MAC. Clear? So you can see the implements encrypt and MAC authentication paradigm attacks exist when used with CBC mode. Clear? So encryption and authentication algorithm, comma encryption keys that are negotiated during the key exchange. Clear? Algorithms and modes, that is AES, 3DES, CBC, CTR, etc. can be different in each direction. ये आप देख सकते हैं, इनक्रिप्ट करने से पहले जो पैकेट है हमारा रैंडमली पैडेड होता है. जैसे एनकोडेड पैकेट के अंदर हमारा क्या क्या आएगा, पैकेट लेंथ होगा. क्लियर? दिस इज अपेंडेड विद द पैकेट पैडिंग लेंथ. क्लियर? या पैडिंग बिट्स. दिस इज अपेंडेड विद द पेलोड दैट कैरिंग द डेटा, एंड दिस इज अपेंडेड विद द रैंडम पैडिंग. क्लियर? सो दिस इज कैरिंग, ये पूरा का पूरा आपका किसके रिलेट कर रहा है, encoded packet से. HMAC और MAC that is computed from the HMAC, आप लोगों को पता है मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड है. H का मतलब हैश लग गया इसके आगे, तो थोड़ा सिक्योर्ड हो गया, एनक्रिप्टेड फॉर्म में हो गया. So which is computed over the encoded plain text packet and an implicit 32-bit sequence number that may not transmitted prevents replay attacks. So MAC is not encrypted. ये आपको ध्यान रखना, मैक को हम एनक्रिप्ट नहीं करते हैं. क्लियर? सो मैक हमारा जो होता है दैट इज मैक की कॉमा सीक्वेंस नंबर अपेंडेड विद द एनकोडेड पैकेट. ये हमारा मैक का सीक्वेंस है. ये देख सकते हैं आप कैसे की एक्सचेंज हो रही है हमारी. सो द की एक्सचेंज मेथड स्पेसिफाइज हाउ वन टाइम सेशन कीज आर जनरेटेड फॉर encryption and for authentication and how the server authentication is done. ठीक है? ये क्या बताता है कि सबसे मेन चीज में क्या है कि जैसे जो भी की एक्सचेंज मेथड है वो स्पेसिफाई करता है हाउ वन टाइम सेशन की जनरेट हो रही है फॉर encryption and authentication and how the server authentication is done. कैसे हमारा सर्वर का ऑथेंटिकेशन हो रहा है. ठीक है? So the server authentication basically is done. Clear? So you can see this domain basically. मेरी आवाज आ रही है सभी को? All of you are getting my voice properly? हेलो क्लास, आवाज आ रही है मेरी सभी को? Okay. Now we come to the next point. ओके, सो नेक्स्ट पे हम चलेंगे. अगर तो नेक्स्ट पे देखिए इसमें, हाँ ये डायग्राम आप देख लीजिए. डायग्राम वही है हमारा. यहाँ जो की एक्सचेंजिंग हो रही है ये हम लोग बात कर रहे थे अभी इसमें. क्लियर? सो हाउ द कीज आर एक्सचेंज. सो जो भी की एक्सचेंज मेथड है वो वन टाइम सेशन के लिए हमारी की जनरेट होती है, एक ही सेशन के लिए. उसके बाद आपकी फिर न्यू की जनरेट होगी जैसे ही सेशन एक्सपायर कर जाएगा. तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस पोर्शन में हमारी की जनरेट हुई. जब सेशन एक्सपायर हो गया की एक्सचेंज के बाद, तो न्यू की जनरेट हो गई. क्लियर? ये ध्यान रखिएगा. सो दिस इज हाउ you can see SSS transport layer protocol applied in the Diffie Hellman key exchange. This you can see how SSS TLP
means SSH transport layer protocol applied into the Diffie Hellman, that is DFE. ठीक, DFE की exchange method में हम कैसे इसको अप्लाई कर रहे हैं, you can see. So पहली लाइन आप देख सकते हैं, we have BS and BCs that are the SS and CS ID strings. clear? तो ये BS and BC क्या है, हमारी ID strings है. KS क्या है, पब्लिक हॉस्ट की है, S की, S का पब्लिक हॉस्ट की है, IS and here IS are SS and CS SSH message keys हैं, ठीक है, that is exchange before this part begin. Clear? So these messages include a 128-bit random cookies to generate या to ensure session freshness. Clear? तो ये जो हमारा 128 बिट का रैंडम कुकी है, ये इंश्योर करता है कि जो भी सेशन है वो हमारा रिफ्रेश होता रहे, ठीक है, जिससे हमारा दोबारा कम्युनिकेशन हो सके, ठीक है, रिफ्रेशिंग इज रिक्वायर्ड. सो सबसे पहले क्या करता है, जो सी है, सी पिक करता है कि रैंडम एक्स नंबर रैंडम पिक करता है, उसकी उससे क्या कंप्यूट करता है, ई इज इक्वल टू हो जाएगा जी की पावर एक्स मॉड पी, ठीक है. फिर क्या करेगा, ये क्लाइंट है एग्जैक्टली, ये ध्यान रखिएगा, सी स्टैंड फॉर क्लाइंट, एस स्टैंड फॉर सर्वर. क्लियर. तो उसके बाद क्या करेगा, सी मीन्स क्लाइंट आपका सेंड करेगा ई टू एस. ई मतलब ये जो ई की पावर जी एक्स मॉड पी है, जो कि कैलकुलेट किया है इसने, वो सर्वर को भेजेगा, ठीक है. सर्वर क्या करेगा सेकंड स्टेप में, सर्वर पिक्स रैंडमली रैंडम वाई, जैसे इसने रैंडम एक्स पिक किया था, ऐसे यहाँ रैंडम नंबर वाई पिक करेगा और कंप्यूट करेगा एफ, दैट इज एफ इज इक्वल टू जी की पावर वाई. जैसे यहाँ ई की ई इज इक्वल टू जी की पावर एक्स मॉड पी निकाला था, वैसे ये निकालेगा एफ इज इक्वल टू जी की पावर वाई मॉड पी. क्लियर. उसके बाद ये क्या करेगा, एस रिसीव करेगा, जैसे एस ने ई रिसीव किया, एस ने जैसे ही ई रिसीव किया, ये कंप्यूट करेगा क्या, के निकालेगा, के और हैश वैल्यू. क्लियर. हैश फंक्शन, तो के इज इक्वल टू मीन्स के की वैल्यू की होगी, की वैल्यू इसने निकाला, तो जो इसको ई मिला था यहाँ से, ई की पावर वाई, वाई इज द रैंडम वैल्यू मॉड पी, उसने की निकाल लिया, और हैश निकालने के लिए क्या किया, हैश बीसी, ये जो बीसी था, बीसी क्लियर, appended with bs, appended with ic, appended with is, appended with ks, appended with e, appended with f, appended with k. जो हमारा है, इससे हमारी हैश वैल्यू आ जाएगी, हमारे हैश पॉइंट्स हमारे कवर हो जाएंगे, ठीक है. एच विथ प्राइवेट और वो किससे करेगा, प्राइवेट हॉर्नेट विथ एस टू, किसको भेजेगा, ये क्लाइंट को भेजेगा, ठीक है. फिर क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट वेरीफाई दैट कीज, इसको वेरीफाई करेगा जो कि के एस है, दैट इज रियली इज द हॉस्ट की फॉर एस, ये सर्वर की हॉस्ट की है या नहीं, इसको वेरीफाई करेगा, लाइक यूजिंग सर्टिफिकेट्स और ए लोकल डेटाबेस, और एक्सेप्ट द की विदाउट वेरिफिकेशन. तो सी कंप्यूट्स, सी क्या करेगा, निकालेगा के इज इक्वल टू एफ एफ की पावर एक्स मॉड पी, ठीक है. जो भी क्लाइंट है वो के की वैल्यू फाइंड करेगा with this function, that is f की power x mod p, then calculate the hash value, that is hash vc, appended vs, appended ic, appended ks, appended e, appended f, appended k. क्लियर. इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इससे हमारी हैश की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है ना, हैश फंक्शन जो सी मैं बात कर रहा हूँ, दिस विल गिव यू द हैश फंक्शन. आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा ये. ओके इसके बाद आप इसमें देखेंगे
कि सी आपका वेरीफाई करेगा सिग्नेचर एस को विथ हैश वैल्यू से। जब दोनों वेरीफाई हो जाएंगे सिग्नेचर और हैश वैल्यू इज द इनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ द डेटा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो मैं हैश की बात कर रहा हूँ ये हमारा क्या है, दिस इज द इनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ द डेटा, डेटा का इनक्रिप्टेड फॉर्म है, ठीक है, जिसको मैं बार बार हैश कह रहा हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें, इफ यू टॉक नेक्स्ट ऑफ दिस, ओके, फिर यहाँ देखिए एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा, द रिजल्ट विल बी व्हाट, की एक्सचेंज में हमारा रिजल्ट क्या निकल के आएगा, की एक्सचेंज हो गई, सी एंड एस आर नाउ शेयर ए मास्टर की के, सी और एस दोनों मास्टर की के शेयर करेंगे, जो कि इन दोनों को पता होगा, ठीक है। एस हैज बीन ऑथेंटिकेटेड टू सी, नाउ सर्वर आपका क्लाइंट से ऑथेंटिकेट हो गया है, सो एस हैज साइंड सी रैंडम डिफे हेलमन पब्लिक की, डीएच का मतलब है यहाँ डिफे हेलमन पब्लिक की, ठीक है। एस जो है, एस क्या करेगा, एस हैज बीन ऑथेंटिकेटेड टू सी, मतलब एस हमारा जो सर्वर है वो क्लाइंट से ऑथेंटिकेट हो गया है। इसका क्या मीनिंग है कि एस ने हैज साइंड सीज रैंडम डिफे हेलमेंट्स पब्लिक की, सो द हैश वैल्यू एस सर्वर्स एज ए सेशन आईडी फॉर द कनेक्शन। अब हमारी जो हैश वैल्यू है सर्वर की वो एज ए सेशन आईडी काम करेगी फॉर द कनेक्शन, क्लियर। नाउ द सब्सिक्वेंट कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड यूजिंग द derived सेशन कीज। तो सेशन हमारे देख सकते हैं इनबिल्ट वेक्टर्स, इनक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन कीज हमारी ये गिवन है, सेशन आईडीज देख सकते हैं IBCS, IBSC, क्लियर, देन EKs, EKSCs, देन AKs। तो यहाँ पे ये एनक्रिप्शन है विथ, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये हमारी प्रॉपरली सेशन आईडीज के लिए डिफरेंट init vectors हैं, सेशन init vectors, that is for encryption and authentication keys हैं। तो ये हमारी authentication keys हैं, AK और AK ये हमारी encryption keys हैं, ठीक है, क्लियर। ये हमारे vectors हैं, init vectors, इसको हम init vectors कहते हैं। that is from client to server, then server to client, client to server, server to client, and this is again from client to server and server to server। तो ये जो की डेटा है हमारा, की डेटा इज टेकन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द हैश आउटपुट, इसको हम स्टार्टिंग में ही ले लेते हैं। ये देखिए, दिस शोज द SSH user authentication protocol, that is the overview। So after the key exchange, the client requests a service by sending, जब की एक्सचेंज हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं जब की एक्सचेंज हो गई हमारी इस नेटवर्क में, उसके बाद क्या होगा, द क्लाइंट रिक्वेस्ट सर्विस बाय सेंडिंग, क्लाइंट सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करेगा, इस मैसेज को सेंड करेगा, दैट इज SSH मैसेज सर्विस रिक्वेस्ट, क्लियर। ये कहाँ, ये एक तरह से पैकेट टू रिक्वेस्ट ईदर द, ये मैसेज एग्जैक्टली किसको रिक्वेस्ट कर रहा है, पैकेट के लिए, टू रिक्वेस्ट ईदर द यूजर ऑथेंटिकेशन और द कनेक्शन प्रोटोकॉल, क्लियर। So if I talk about the user authentication protocol in SSH, so you can see SSH authentication protocol basically runs over the SSH transport layer protocol. It assumes that the underlying protocol provides integrity and confidentiality protection. So the protocol has access to the session ID. Protocol हमारा session ID पे access करेगा। Is it clear? So it supports basically
3 यूजर ऑथेंटिकेशन, ये 3 यूजर ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है। 3 ऑथेंटिकेशन मेथड्स, पहला है पब्लिक की, दूसरा है पासवर्ड। पब्लिक की आपका रिक्वायर्ड होता है क्योंकि इसी से हम इंक्रिप्शन यूज कर रहे हैं। की जो हमारी है वो पब्लिक की है, तो ये रिक्वायर्ड रहेगी या एसेंशियल रहेगी। देन वी हैव पासवर्ड, दैट इज ऑप्शनल, एंड देन होस्ट बेस्ड। Clear? So the server controls with authentication method that can be used. Now पब्लिक की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, जो क्लाइंट है वो सेंड करता है सर्वर को ए साइंड मैसेज, मतलब साइन करके मैसेज सेंड करता है। क्लियर? एंड इट कंप्राइजिंग द सेशन आईडी, सभी को पता है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सेशन आईडी होती है, यूजर नेम होता है, और यूजर्स की पब्लिक की होती है। ठीक है, जो भी क्लाइंट सेंड करेगा सर्वर को एक साइंड मैसेज सेंड करता है, उसका मीनिंग क्या होता है कि इसमें आपका सेशन आईडी है, यूजर नेम है, एंड यूजर्स पब्लिक की है, एंड सब अदर इंफॉर्मेशन सिग्नेचर होगा, यूजर्स मतलब सप्लाई की गई है वो एक्सेप्टेबल है ऑथेंटिकेशन के लिए कि नहीं। अगर ऐसा है तो चेक करेगा वेदर द सिग्नेचर इज करेक्ट और नॉट। पहले तो पब्लिक की को वेरीफाई करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा, फिर सिग्नेचर को चेक करेगा इज इट करेक्ट और नॉट। क्लियर? so this is all about the public key. Then we have password. If you talk about the password, okay, so the client essentially sends the username. ठीक है, क्लाइंट पहले क्या भेजता है, essentially sends the username. Clear? So the client essentially sends the username and the password in clear. ठीक है, so they are however protected by the SSH transport security protocol. होस्ट बेस की बात करें तो एनालॉगस टू द above public key method, but with per host public key authentication is based on that the user is coming from the username or on the remote host. तो उससे थोड़ा अलग रहता है लेकिन एनालॉगस है उसी के रिगार्डिंग। Now if you talk about SSH connection protocol here, so if you see, so this is the SSH connection protocol. So it basically provides interactive login sessions, remote execution of commands. Then we have forward TCP IP connections, that is port forwarding. ये सब इसी के अंडर में आएंगे. Then we have forwarded X11 connection. Clear? So you can see we have client and server model. So in this client server model, you can see in this client server model, you can see we have established authenticate and transport layer connection. सबसे पहले तो एक connection establish हुआ है. Clear? Then we have SSH message channel open. तो ये request कर रहा है client for the message channel open के लिए, means messages को communicate करना, तो channel should be open and the server side. So it just request for that. Then जो सर्वर है वो इसको acknowledge करेगा that the channel is open with the SSH message channel confirmation. Then it may send the data. So data transfer may takes place. Clear? Through so data transfer may takes place. You can see SSH message channel data इसने send किया. That is secure cell message data that is communicated. Clear? So is it visible? इसको दिख रहा है? Hello?
सभी को दिख रहा है फाइल? ओके, सो नाउ इट इज विजिबल। ओके, सो यू कैन सी, फिर देन भी जब एक बार हमारा चैनल एस्टेब्लिशमेंट हो गया, देन इट कैन एक्सेस द डेटा थ्रू द ओपन चैनल टू द सर्वर। सो क्लाइंट ने मैसेज चैनल के थ्रू डेटा को कम्युनिकेट किया टू द सर्वर, और सर्वर ने भी उसको एक्नॉलेज किया, ठीक है। सो द डेटा ट्रांसफर में टेक्स प्लेस इफ यू हैव सेवरल डेटा, so you can send it clear in regular interval. So after the session may expire for the communication of data, so the channel will get closed. So at the server end, so SSH message channel close, एक मैसेज जाएगा सर्वर के एंड पे to close the session and terminate the session as there is no data, further data is available. So you can see, so these steps implemented as channel multiplex into an encrypted tunnel. So the tunnel is provided exactly. So you can see the tunnel is provided here by the SSH transport layer protocol. Now, if you see this SSH connection protocol में जो हम TCP/IP port forwarding की बात कर रहे हैं, so port forwarding or SSH tunneling, that is one of the most useful feature of the SSH. Using port forwarding, one can convert any insecure TCP connection into secure SSH connection. पोर्ट फॉरवर्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, इनसिक्योर कनेक्शन को सिक्योर TCP कनेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जो भी इनसिक्योर TCP कनेक्शन होगा उसको SSH सिक्योर कनेक्शन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखिए क्लाइंट एंड सर्वर है, जो भी क्लाइंट एप्लीकेशन है TCP के थ्रू हमारा जो कम्युनिकेट कर रहा है सर्वर के एंड पे, दैट इज सपोज अनसिक्योर TCP कनेक्शन, ठीक है। जब इसी को हमने SSH टनल के थ्रू कम्युनिकेट किया एज कम्पेयर टू TCP कम्युनिकेशन, तो ये हमारा सिक्योर हो गया। ये देखिए टनल है, दिस इज द टनल from where the communication is done. So client may get connected to the server and through the tunnel, and it is now just secured. So we are just using an SSH entity. SSH entity हम लोग यूज कर रहे हैं, देख सकते हैं आप इनके बीच में क्लाइंट एप्लीकेशन एंड TCP एंटिटी, और यहाँ पे सर्वर एप्लीकेशन एंड TCP एंटिटी के बीच में हम लोग एक SSH एंटिटी यूज कर रहे हैं, जैसे हमारा कनेक्शन सिक्योर हो गया, ठीक है। नो, सो कनेक्शन, इफ यू टॉक अबाउट पोर्ट फॉरवर्डिंग, इसको हम लोग लोकल पोर्ट फॉरवर्डिंग भी कह सकते हैं। सो कनेक्शन फ्रॉम द SSH क्लाइंट आर फॉरवर्डेड बाय द SSH सर्वर टू द डेस्टिनेशन सर्वर। तो ये हमारा एक तरह से कह सकते हैं फॉरवर्डिंग मैसेज है। किस तरह से जाता है, पहले SSH L सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन होस्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट SSH होस्ट, क्लियर। So L stands for local, SSH local, source port, destination host, destination port, then SSH host, ठीक है। जैसे एग्जांपल पे देख सकते हैं आप, L8080 हो गया सोर्स पोर्ट, कॉलन डेस्टिनेशन होस्ट की जगह आ गया लोकल होस्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट की जगह नंबर आ गया पोर्ट नंबर 80, फिर SSH होस्ट की जगह आ गया FESB.HR। ये मैसेज हमारा सिक्योर फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। ये देख सकते हैं आप कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, your host and this is remote host and this is the local host. So we have the tunnel for the communication through SSH. So this is secure communication. यहाँ देख सकते हैं आप, ये हम लोगों ने your host यहाँ पे है, remote host हमारा और local host अलग हो गया, ठीक है। Then we have communicated right now. तो इनके इनके बीच में SSH कनेक्शन है और यहाँ से हमारा डेटा एक्सेस होता रहा है। तो we have, अगर रिमोट होस्ट की बात करेंगे तो रिमोट होस्ट में R आ जाएगा, SSH R सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन पोर्ट एंड SSH होस्ट। तो ये हमारा देख सकते हैं, ये डायग्राम है इसके लिए। ओके, सो किसी को कोई डाउट है, ये आपका ओवर हो गया। एनीवन हैव एनी डाउट? बेटा किसी को डाउट है कोई?